स्पेशल ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ आपकी होस्ट सना ज़िया। आज जो प्रोग्राम में लेकर आई हूँ दैट इज़ अबाउट कम्युनिटी हेल्प एंड कम्युनिटी अवेयरनेस। और आज जो मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं, इट्स अ टीम ऑफ एनजेप विक्टोरिया। तो चले टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहले इंट्रोड्यूस कराती हूँ मेरी सबसे पहले गेस्ट को, डॉक्टर आयशा साकिब, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ एनजेप। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम सना। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। आप ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। तो चलिए अपने नेक्स्ट गेस्ट को बुलाते हैं। मेरी नेक्स्ट गेस्ट है डॉक्टर नादिया बलोच। शी इज जनरल प्रैक्टिशनर एंड ट्रेजरर ऑफ एनजेप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नादिया। ठीक ठाक? कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक ठाक। जी। तो चलिए अपने थर्ड गेस्ट को बुलाते हैं, डॉक्टर शेरोज खान, जनरल प्रैक्टिशनर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ एनजेप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? हाँ जी, बस बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपकी आयशा, आप और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में आए। नहीं सना, बहुत शुक्रिया आपका हम लोग को इनवाइट करने का। आई थिंक इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। आपके प्रोग्राम्स देखते रहते हैं अक्सर ट्रांसमिशंस में। आई थिंक इट्स एवरी सेकेंड वीक और वीक। वेरी नाइस एंड वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी एंगेजिंग फॉर द होल कम्युनिटी। सो यू आर थैंक डूइंग यू। रियली गुड जॉब एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो आपसे ही शुरू करती हूँ। आपका रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान, ये रमज़ान थोड़ा सा डिफरेंट आया है, आई वुड से, बिल्कुल। रादर देन सेइंग डिफिकल्ट वन। अल्हम्दुलिल्लाह सही गुजर रहा है, लेकिन ये कि इस रमज़ान रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी डिफरेंट हैं और कमिटमेंट्स डिफरेंट हैं और द वे इट्स हैपनिंग विद अस और वी स्पेंडिंग द रमज़ान इज वेरी डिफरेंट. We जी haven't spent Ramadan like the way we are spending at the moment because of this coronavirus and pandemic. So it's very new. But look, I think we are almost done with the Ramadan, and Alhamdulillah, it went okay. But as I said, that different responsibilities and different way we are doing it, and it's little stressful. But look, I think we are coping. या and plus you are president of NZEP Victoria. So can you tell us a little bit about what NZEP is and like how you are facilitating our community? Mhm. And Sana, basically, it's an organization. I would say it's a symbol of unity. It's an organization representing doctors from Pakistani descent. So we doctors, although we most of us are Pakistani born, but look, I think we are very much equipped with the knowledge. We bring all our knowledge, and we are very settled here in the Australian system. But if you look at our background, the social background, I guess it's little different. So it likely requires some sort of collaboration with other colleague who has got some a similar background. So basically, the idea of having the NZEP, which was established back in 2011, was to bring all the doctors from the Pakistani descent together. So we can then start working together towards the community welfare, towards the charity project, towards the collaboration, research, and education, and sort of hand in hand together. I think it's easier to get things done as compared to as an individual. So as I said, that first component of this organization was basically the welfare, community welfare, charity funds and relief. So that's the biggest component, but at the same time, social events and collaboration with the other organizations as well as some educational activity as well. So Alhamdulillah, so as I mentioned that it was established back in 2011 and since then it's sort of growing, not in terms of numbers of the doctors, but also in terms of the services it's providing to the community and other doctors as well. That's really great. Thanks. You explained it really well. So next question is from Dr. Sheroz. डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं आपका रमज़ान कैसा गुजरा?
ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिफरेंट है इस साल, क्योंकि जी जी एक फॉरेन कंट्री में अगर आप होते हैं तो आप सब बिजी होते हैं यहाँ पे, और इतना गेट टुगेदर नहीं होता। रमजान में ऑफकोर्स अदर देन इबादत आपको एक मौका मिलता है लोगों से, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा मिलना। तो वो इस साल बिल्कुल भी डिफरेंट है, हम बिल्कुल किसी से नहीं मिलते हैं, तो बहुत ही डिफरेंट है। जी जी बाकी रोजे तो इजी है यहाँ पे, इट्स विंटर सो इट्स वेरी शॉर्ट डे। जी 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 अच्छा, you are General Secretary of ANZAP. So जी। can you tell us a little bit about your role in ANZAP? देखिए, जनरल सेक्रेटरी मीन्स एक्चुअली कॉन्टेक्ट पॉइंट। जो एनजेप का ईमेल है वो मैं संभालता हूँ। तो सारा जिसको कोई कॉन्टेक्ट होता है वो दे कम टू मी, दे सेंड एन ईमेल टू मी एंड देन आई फॉरवर्ड इट टू अदर पीपल एंड देन हम डिस्कस करते हैं आपस में। जनरल सेक्रेटरी बेसिकली मीन्स लाइक इफ समबडी हैज टू हैव एनी इश्यू, कोई इनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, कहीं डोनेशन की जरूरत है, और भी देयर इज एनी हेल्प that they require, they contact me directly, and Okay, then I bring forward to everyone. okay. And much Thank you. doing brilliant job. चलिए जी, आपका तो अप्रूवल भी आ गया प्रेसिडेंट की तरफ से। You know, नेक्स्ट any organization is important to have a really strong, punchy general secretary. Without Dr. Charos, I think it would have been really difficult to work together because I think he's the main communication point for everyone. So yes, he's doing brilliant job. Thank you, Dr. Charos. और एक दूसरी बात डॉक्टर मैं कहना चाहूँगा जी जी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो बहुत न्यू हैं, हम लास्ट 3-4 ईयर्स से हैं, हम लोग यहाँ पे। लेकिन जो हमारे सीनियर्स हैं, जो इन्होंने ये स्टार्ट किया है, हैट्स ऑफ टू देम। हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे। वी आर जस्ट कैरिंग आउट व्हाट दे हैव डन। तो हमने कोई इतना एक्स्ट्रा नहीं किया। दे आर द वंस हु डिजर्व ऑल द एप्रिसिएशन। जी Yes, और दूसरा, आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन डॉक्टर शरोज, यू नीड टू टेक दिस कॉम्प्लीमेंट, टेक आयशा स्टेटमेंट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जी एक जी जी। फीमेल आपको इतना कॉम्प्लीमेंट कर रही है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। जी, अगला सवाल नादिया से है। नादिया, पहले वही जो सबसे पूछा है, आपका रमजान कैसा गुजरा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम मेरा सलाम। रमजान जो है अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि हमारे हम ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, माशाल्लाह से हमारे रोजे छोटे हैं, सो नो कंप्लेंट अबाउट दैट। बट अदर देन दैट इट हैज बीन वेरी बिजी एट द वर्क प्लेस। तो काम काज पे तो बहुत बिजी रहा है, क्योंकि सहरी के बाद वापस निकल जाते हो काम पे, फिर रात में वापस आना या इफ्तार से बिल्कुल पहले आना, या रोजे इतने छोटे हैं कि इफ्तारी बकायदा गाड़ी में हो रही होती है। एक खजूर होता है और पानी की बॉटल होती है सामने। ये तो है, और यहाँ पे काम करना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान जैसे रोजे नहीं है कि अगर आप घर जाएंगे तो हर चीज़ आपको तैयार मिले। बट एनी हाउ, दीज आर द चैलेंजेस। जी बिल्कुल, these are the challenges, but अल्हम्दुलिल्लाह नो कंप्लेंट्स। माशाल्लाह बहुत हेल्प है, और चीजें भी अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग अलोंग, चल रहा है काम। एंड दैट्स गुड। अच्छा, अब आपका रोल इज लाइक यू आर अ ट्रेजरर ऑफ एनजेप, और जो भी ट्रेजरर होता है उसके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। तो व्हाट यू थिंक, इट इज अ चैलेंजिंग रोल और यू टेक इट इजी? It's a challenging role, I believe. Yes, it is. लेकिन alhamdulillah, it has been going very well till now. And as Dr. Shahroz said, कि हमारे पहले सीनियर्स थे जो ये करते थे, तो हमारे सीनियर्स ये करते आए, उन्हीं से हमने बहुत सीखा है। और आई एम जस्ट कैरिंग ऑन व्हाट दे हैड ऑलरेडी प्लांटेड, उन्होंने ऑलरेडी चीजें करी हुई थी, तो जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत आसान रहा है। मैं तो बस कैरी ऑन कर रही हूँ जो उन्होंने ऑलरेडी करा हुआ है, और उसको आगे परस्यू करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड ट्राइंग टू कीप इट द राइट ट्रैक, एंड ट्राइंग टू कीप इट ऑनेस्ट, ट्रू और क्वाइट ट्रांसपेरेंट। चलें, थैंक्स फॉर योर एक्सप्लेनेशन। अच्छा डॉक्टर आयशा, वापस आपकी तरफ आऊँगी। एनजेप फॉर दिस रीसेंट पैंडेमिक की जो सिचुएशन है उसमें यू रिसेंटली अनाउंस समथिंग लाइक योर सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज फॉर स्टूडेंट्स एंड दोज हु डिजर्व। तो अगर आप थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दें कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। So now basically, as I mentioned, collaboration is important, and I think the whole idea of this organization, which is a voluntary, non-profit charity organization, is to help each other out.
And when we heard it's really difficult to cope with this pandemic because it's all new for us, for everyone, including doctors, any person. So when we came to know that the overseas students, in particular Pakistani students and some community people who have got non-resident status here, they are struggling a little bit in terms of the medical facilities because they were not able to have those facilities available to them because of no Medicare and no non-resident status. So we have had a bit of discussion among ourselves first as a executive committee, and then we put that forward to our members. And look, I think we have got a huge community of NZEP doctors. It's around 200 plus doctors. And they just put their hands up, all right, we are available, we'd be happy to provide those services because we understand the whole situation as well as it's difficult to cope with what's happening at the moment. So when we put this idea forward to our NCEP community, the whole 200 people or the doctors, they put up their hands and they said, that's fine, we'll be available and it will be without any cost. So we then compile a list, and Dr. Sharoz, Dr. Nadia, everyone was sort of involved. So it took us a while to just compile a list, and then we sort of send it to different organizations where it would be available, readily available to all the students or any people who are not able to have those services available to you. So it worked quite well. But as I said, that it does require a bit of collaboration and a bit of hand-in-hand work. So again, I would like to thank NZEP community, the whole group of our doctors who help us a lot to put this list together. And when you said there is a whole list of doctors available, is it like, you try to manage all four corners of Melbourne, or it is like, you touch particular areas only? Oh, it's Alhamdulillah. Pakistani community is dispersed everywhere in Victoria. So we have doctors not just in the CBD in Melbourne, we do have doctors in the regional areas as well, in particular Shepparton, Gippsland, Traralgon, Ballarat. So we have had lists for all those contexts as well. So it was just not Melbourne CBD area, it was in fact the whole Victoria. So we have had different doctors, and again, it's really good and it's exciting that the whole Pakistani doctors community is dispersed, just not over the Victoria, but I guess it's possibly all over the Australia. Yeah, mashallah. Next question, Dr. Sharoz, आपसे है. आपने कहा था you are the point of contact and you are the one who handle all the queries and email. तो let's suppose अगर जो भी deserving है या जिसको भी free of cost चाहिए, doctor से related जो भी है, referrals या whatever, तो how they contact you? नहीं, देखिए ये जो चीज़ है ये हर डॉक्टर ने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अलग से दिए हुए हैं, तो इट डिपेंड्स वो पेशेंट या वो पर्सन कहाँ है, कौन से एरिया में है, तो वो डायरेक्टली उन डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट करेंगे. अदर देन दैट जो जैसे कि हमारी क्लासेस होती हैं, एजुकेशनल क्लासेस, उसकी वजह से सारे जो कॉन्टैक्ट होते हैं कि दे वांट टू अटेंड क्लासेस, वो सारे आते हैं मेरे ईमेल पे. और अब तो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट हमें इम्प्रूवमेंट है कि हमें इंडियन जो है उन स्टूडेंट्स के हमें ईमेल आना शुरू हो गए हैं कि हमें ऐड करो इन क्लासेस में, विच इज़ अ बिग हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है. ठीक, दैट्स रियली गुड. दूसरा ये कि आपने कहा कि वो जो एजुकेशनल क्लासेस होती हैं उसको आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकते हैं? जी, यहाँ के एग्जाम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एग्जाम्स, तो उसमें फेस टू फेस पेशेंट इंटरेक्शन के क्लासेस होते हैं, तो एग्जाम्स होते हैं, तो उसकी क्लासेस हमारे पास सीनियर टीचर्स हैं, कोलीग्स हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि आपको एग्जाम सिनेरियो में किस तरह बिहेव करना है. एंड ऑफ कोर्स उनके पास रिकॉल्स होते हैं, तो उसमें डिस्कस करते हैं. बहुत सिग्निफिकेंट हेल्प होती है. आजकल तो इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स कुछ ज़्यादा क्लासेस हो गई हमारी. आई थिंक बहुत वॉलंटियर हमारे सीनियर्स ने किया है कि दे आर अवेलेबल, जिसमें डॉक्टर माजिद, डॉक्टर वसीम सियाल, डॉक्टर आजू एंड मैनी मोर. आई कांट रिकॉल ऑल ऑफ देम, लेकिन हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया हमारे सीनियर्स. जी. अब आपने बोला कि जैसे क्लासेस हो रही हैं, तो इज इट अगर किसी ने भी क्लास में ऐड होना तो वो आपको ईमेल करेंगे, और दूसरा ये कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं
अगर आप बताना चाहें तो उस पर जी नहीं, कि ऑल ओवर कहाँ कहाँ ऑस्ट्रेलिया से क्लासेस हो रही है। ठीक। ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया से ईमेल आते हैं। देखिए ईमेल आता है, फिर उनको वो उनसे मैं उनका फ़ोन नंबर माँगता हूँ, उस फ़ोन नंबर को अपने फ़ोन में ऐड करता हूँ, फिर उनको उनके वो जो हमारा एएमसी का व्हाट्सएप ग्रुप है, फिर उसमें ऐड करता हूँ, फिर उनका नंबर अपने फ़ोन से डिलीट करता हूँ। तो बहुत ठीक। बड़ा प्रोसेस है, लेकिन ये पूरे मेलबर्न, पूरे विक्टोरिया से आते हैं ये हमें, और इवन पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं डॉक्टर्स, उनके भी हमें काफ़ी ईमेल आए और हमने उनमें से भी काफ़ी को ऐड किया था। अब हमारे पास इतनी है कि कैपेसिटी अब हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब थोड़ा-सा हमें अच्छा। रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अच्छा। चलिए और सना एक जी जी। क्लियर कर दूं कि ये जो है विदाउट एनी कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे जी। हैं हमारे एनजेप मेंबर्स, इट्स फ्रॉम मेंबर फॉर मेंबर, एंड again it's time consuming despite being a busy doctor, GP or whatever they're doing. They try to have some time off to be able to educate the student to be or prepare the student for the AMC classes. तो ये कि without any cost, क्योंकि otherwise sometime it costs like to have those sort of services or programs to prepare doctors for the licensing exam. It's there's a cost involved in general. So it's been organized really very efficiently via NSEP at the moment. या एंड आई थिंक दैट इज़ रियली ग्रेट सर्विसेज बिकॉज जो भी नए आते हैं डॉक्टर्स उनके लिए टेस्ट क्लियर करना आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। और इसमें इट्स नॉट ओनली कपल ऑफ हंड्रेड, एज पर माई नॉलेज आई थिंक कपल ऑफ $1000 स्पेंड करने पड़ते हैं। तो उसमें अगर आप इस तरह की क्लासेस करें तो आई थिंक दैट इज़ रियली ग्रेट वर्क। और लोगों को प्रिपेयर करना और ये करना और फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन टॉप ऑफ इट, तो आई थिंक इस पे तो इट्स रियली अ ग्रेट चैलेंज भी है और प्लस इट्स रियली ग्रेट सर्विसेज एज वेल। अगला क्वेश्चन नादिया से है, डॉक्टर नादिया। जी जैसे कि मैंने पहले भी कहा था आपका रोल बड़ा चैलेंजिंग है एज अ ट्रायलर। तो जो भी फंड्स वगैरह होते हैं उनको यूटिलाइज करना, प्लस ये भी रखना कि वो कहाँ यूटिलाइज हुए, कितने रिक्वायर्ड हैं, कितने नहीं हैं, तो हाउ चैलेंजिंग इट इज़। जो फंड्स है बेसिकली एज अ ट्रेजर दो चीजें हैं। एक तो एज चैरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, जो कि हम लोग डोनेशन जमा करते हैं, ऑब्वियसली उसको रिस्पेक्टेबल जगह पे पहुंचाना, सो दैट्स अ बिट ऑफ अ टास्क। एंड प्लस दूसरा जो है वो है एट द सेम टाइम एज अ ट्रेजर देखना कि फंड्स कितने हैं, तो वो उन फंड से जनरेट नॉर्मली हम साल के कुछ फंक्शंस करते हैं एज अ ट्रेडिशन, जो हमारे सीनियर्स करते आए हैं और उसी को हम कैरी ऑन कर रहे हैं बेसिकली। तो हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारा 23 मार्च का एक पिकनिक होता है, 23 मार्च का 14 अगस्त का फंक्शन विद ईद के साथ कंबाइन करते हैं, और फिर जो एंड ऑफ ईयर होता है हमारा एजीएम होता है। तो इन तीनों फंक्शंस को फंड करना, इसमें एज आपको पता है कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना तो उसके अंदर खाना पीना, staging, uh, everything is involved, and all of that requires good amount of fund. Without that, and sponsors, to be honest, उसके बगैर नहीं हो सकता काम। तो जी जी। वो सब करते हैं, और वो सारे एनजेप के मेंबरान उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जस्ट टू मेक इट अ गुड फैमिली ओरिएंटेड एंड कल्चर ओरिएंटेड फंक्शंस। लेकिन इस साल नहीं हो सका क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और हमारी जी रिस्ट्रिक्शंस जी। हैं। जी बट जी। एट द सेम टाइम हमने चैरिटी नहीं छोड़ा, वी हैव नॉट लेफ्ट इट। हम भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी चैरिटी प्रोजेक्ट चले, और हम इस साल हमने अब तक हम काफी चैरिटी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं और कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जो हमारे चैरिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली ये है कि हमने साल के शुरू में जो है हमने इंडस हॉस्पिटल को थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया था, जो कराची में होता है, ऑल ओवर पाकिस्तान में जो फ्री में इलाज कराते हैं। इसके अलावा बुश फायर था, जो कि हम ऑस्ट्रेलिया से बुश फायर था, ऑस्ट्रेलिया हमारा घर है ऑब्वियसली, सो वी हैव टू, चैरिटी बिगिंस एट होम, सो दिस इज आवर जी होम, जी। और हमने यहाँ के लिए उसके लिए डोनेशंस करी। इसके अलावा रमजान रमजान मुबारक के लिए जो 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं मेलबर्न के विद इन, उनके साथ कोलैबोरेट करके, विदाउट टीम वर्क वी कांट डू एनीथिंग, उनके बगैर हम नहीं कर सकते कुछ, तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया, और ताकि हमारी जो फंड्स है, चैरिटी है, सदका है, वो सबको पहुंचे रमजान के महीने में। और प्लस एट द सेम टाइम हमारा एक और कमिंग प्रोजेक्ट है, वो है कोविड-19 के लिए प्रोजेक्ट, पाकिस्तान की डोनेशन के लिए वो भी चल रहा है। तो
काफी कुछ कर रहे हैं साथ साथ में बिहाइंड द सीन्स, लेकिन चल रहा है एट द सेम टाइम। ऑनलाइन हर चीज हो गई है, एज यू नो, तो वो जी भी जी, चल रहा है सब। चलिए माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड है। अब आयशा आपसे पूछती हूँ, मैनेजिंग योर प्रोफेशनल लाइफ एंड नाउ यू आर माशाल्लाह प्रेसिडेंट ऑफ एनजेप एज वेल, तो डू यू थिंक इट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज एंड हाउ यू आर कोपिंग अप विद बोथ द रोल्स? डॉक्टर आयशा, हेलो। मेरा ख्याल है आई थिंक ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम मे भी शायद उनको नहीं आवाज़ आ रही। डॉक्टर शेरोज आप बताएंगे, जी जी, देखिए यहाँ पे ऑफकोर्स आप अगर मुझे ये बता दें कि जैसे कोविड-19 का अभी नादिया ने बताया, तो उस हवाले से अभी राइट नाउ ऑफ कोर्स सिचुएशन इज लिटिल बिट लाइक नो ट्रिकी, एंड बीइंग अ डॉक्टर आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर एनजेप बैनर? देखिए अंडर एनजेप बैनर एक तो हमने जैसे कि हमने पूरे डॉक्टर्स को हमने सबके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने फॉरवर्ड किए हैं। जी किसी को जी भी कोई हेल्प हो, कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हो, दे कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली। उनके अपने एरिया में डॉक्टर्स हैं, उनको कॉन्टैक्ट करें। दूसरा, फॉर कोविड स्पेशली फॉर पाकिस्तान, हमने हमारा प्लान है कि कोई पाकिस्तान रिलीफ फंड हम गैदर करें। उसके लिए आजकल हम काफ़ी हम कर रहे हैं स्ट्रेटजीज कि हम जल्दी कुछ फंड्स मिले और हम पाकिस्तान डोनेट करें। चलिए, दैट्स रियली गुड। नादिया, Um, आप अब अगर बताएंगे। I'll just on कि I think at the moment हम लोग जी के जो responsibility है वो काफी बड़ी भी है, not only professional level, being a doctor obviously we are the frontliner, but also at the organizational level. But we are trying our best in terms of trying to do both the jobs in an efficient way. And charity projects Dr. Nadia and Dr. Sharoz ने already mention कर दिए हैं। जी इसके जी अलावा हमारी जो एजुकेशन एक्टिविटी है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो सिर्फ हमारे डॉक्टर्स के लिए नहीं है। हम लोग अपनी कम्युनिटी के लिए भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इन पर्टिकुलर कोविड-19 के हवाले से हमने फ्यू एक्टिविटीज़ एंड सेशंस किए थे जो कि हमारे वेब पेज पे मौजूद हैं। फेसबुक के थ्रू ठीक। जाके आई थिंक पीपल कैन हैव अ लुक एंड दे कैन have some more knowledge about this COVID-19. And ठीक है। there are few which we are planning and working on. And I think the biggest one would be the mental health and also the या impact on the mental health due to this COVID-19. So that's something which we are on and inshallah would come through soon. या चलिए, दैट्स रियली गुड। और ये कि इसको मैनेज करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। ऑफ कोर्स आप लोगों ने इतने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। तो अगेन नादिया आपसे ही पूछती हूँ, कोविड-19 के हवाले से जैसे अभी आयशा भी बता रहे हैं कि आपने कुछ अवेयरनेस रेजिंग और थोड़ी एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी आप लोगों ने किए, विच इज़ अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल। तो उसकी थोड़ी सी डिटेल बता सकते हैं आप, और एनी टिप्स? अब तो क्योंकि थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस वेव ऑफ हो गई हैं, तो इसमें व्हाट थिंग्स नीड टू बी डन? रिस्ट्रिक्शंस वेव ऑफ हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हमें जो है केयरफुल रहना है। जी जी डिजीज तो है अपनी जगह, ऑन टॉप ऑफ दैट जो है अवेयरनेस अभी काफी ज्यादा हो गई है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो जो पहले रूल्स थे वो अभी भी होते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करें, हैंड हाइजीन मेंटेन करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और गैदरिंग्स जो है वो अभी सिर्फ लेस देन 5 है, ज्यादा गैदरिंग्स ना हो। आई एम श्योर ईद आने वाली है तो गैदरिंग्स अल्लाह होपफुली ना हो इतनी ज्यादा, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड हो। और इसके अलावा जो है वो जो हमारा जनरल प्रैक्टिस है, जो वर्क है, वो ज्यादा टेली हेल्थ की तरफ चला गया है। और जो है हम लोग इवन इन हमारे वेटिंग रूम्स में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट्स इतने जमा ना हो। सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठे हुए होते हैं, जब उनका टाइम आता है तो दे कॉल फॉर अपॉइंटमेंट। जस्ट इन अगेन हम लोग जो है इसका स्प्रेड जो है जितना जो है फ्लैटन द कर्व करने की कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जी। चलते चलते, बिकॉज यू आर ऑल डॉक्टर्स, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा कोविड-19 के हवाले से भी डिस्कस कर ले। मैं आप लोग ये मतलब कोविड-19 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ। डॉक्टर आयशा आपसे पूछते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है,
वो ये है कि कई लोग ये कहते हैं कि कोविड-19 के से रिलेटेड बच्चों में शायद इम्यून सिस्टम जो है वो इस तरह का है कि इट्स नॉट सो ऑब्वियस इन किड्स एज कंपेयर टू अडल्ट्स. I think if we talk about COVID-19, what we are seeing and learning के जो severity illness है, that's not that high in kids. So जी जी although they get it, and again the number of cases within that group is not as high as it is in adults or the aged population. And again, look, I think we don't know the exact reason behind it. We're still learning a lot about it's sort of a mystery for us. So we're trying to peel off each like layer by layer and learning a bit more. The other thing I think which has emerged in last few days, there was a skin disease as well, and they sort of thinking and querying whether that's linked with the COVID-19. And again, it's not very common; it's uncommon situation. So बच्चों में जो है yes severity कम है and incidence भी कम है, but again when it comes to the restriction and any other hygienes like the social distancing or doing the using the sanitizer and all those things, that's important क्योंकि बच्चों को ये learn कराना it could be little difficult, but if they have a virus then they can transmit very very easily. So again we have to have all those precautions for all age group across the board, just not for the adults or for the aged population only. ठीक. एक डॉक्टर शहरोज जैसे एक ये मिथ है या फैक्ट है, आई एम नॉट श्योर, इसीलिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार लोग ये कहते हैं कि एज फैक्टर मैटर करता है. मे बी इफ़ यू आर 60 प्लस तो लाइक यू आर मोर वल्नरेबल टूवर्ड्स कोविड-19 एज कम्पेयर टू अडल्ट्स. लेकिन आपने ये भी देखा है कि कई अडल्ट्स हैं जिनको ऑफ कोर्स दे कांट रेजिस्ट, वो कि उनकी डेथ भी हो गई है और वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, इवन दे आर क्वाइट यंग. तो उसके कोई पैरामीटर्स हैं या इट वेरीज पर्सन टू पर्सन? आई थिंक इट वेरीज पर्सन टू पर्सन. देखिए एज के साथ साथ देयर वुड बी कोमॉर्बिडिटीज, जैसे किसी को डायबिटीज हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, मे बी एस्थमा, या तो फिर ओवर द इयर्स ऑफ स्मोकिंग. तो ऐसे अगर उनकी साइड पे कोई और देयर इज अनदर क्रॉनिक डिजीज तो दे आर मोर वल्नरेबल. इवन अ माइल्ड इलनेस, जैसे कि एवरी ईयर देयर इज इन्फ्लुएंजा इन ऑस्ट्रेलिया एंड दैट्स व्हाई इट अफेक्ट्स मोर इन दोज पीपल. Similarly, this virus, COVID-19, is more like these people are more susceptible. उनका immune system थोड़ा weak होता है, I think because of the comorbidities, but not with everyone. It depends on person to person. Some people, adults, I think their immune system is very good, so they might not even feel any symptoms. And I think regarding kids, Dr. Aisha ने भी बात की, तो बच्चों का ये है कि they are more carriers, very unlikely for them to have symptoms. या तो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स होंगे, लेकिन इसीलिए दे हैव बीन एडवाइज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम देयर ग्रैंडपेरेंट्स because they might actually go and give this disease to their grandparents. So that's what. Okay. डॉक्टर आयशा, सॉरी डॉक्टर नादिया, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि रमज़ान है और उसके बाद ईद है, तो इस हवाले से जैसे कि अभी कोविड-19 है लेकिन ये कि ज़ाहिर रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी उठ गई हैं, लोग अब बाहर जाएंगे या क्या, तो इज़ देयर एनी स्पेशल प्रिकॉशन वी हैव टू टेक? क्योंकि ज़ाहिर है आप रमज़ान में रोज़े रखते हैं तो इम्यून सिस्टम वीक होता है या स्ट्रॉन्ग, या ये कि इट्स जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन? मुझे लगता है रमजान में ज्यादा काम होता है और सब हम सब हम ज्यादा प्रोडक्टिव होती है और सब हम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं प्रॉब्लली, क्योंकि हम लोग उल्टी सीधी चीजें नहीं खा रहे होते. लेकिन आई वुड प्रॉब्ली से कि अभी भी रमजान है, उसके बाद इंशाल्लाह ईद है और साथ खैरियत है, एंड आई वुड प्रॉब्ली से कि वही हमें प्रिकॉशंस मेंटेन करने हैं जो हम कर रहे थे, of social distancing और hand hygiene, और at the same time जो है अपने घर वालों को सबका ख्याल रखते हुए चलना है. I know it is very frustrating कि इंसान घर में बैठा हुआ है और बहुत दिल जा रहा है हमें बाहर जाना है. It's just like really want to go out. Depression, anxiety peak पे है due to this. But still we have to maintain जो हम करते आ रहे हैं उसको, ताकि we can all fight this together and flatten the curve. That's the main aim.
और अपने लिए, सबके लिए भी। और एज हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हम लोगों को ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग काम करते हैं, फिर काम के बाद जैसे ही घर जाते हैं तो एक मेंटल वो होता है कि बस बच्चों को मैं कहती हूँ कि अभी मुझे हाथ नहीं लगाना, मुझे जाना है भाग में, पहले आई हैव टू गो टेक अ शावर एंड देन आप लोगों से बात करती हूँ मैं आके। तो ये चीज तो हम लोगों को अभी भी मेंटेन करनी ही है जब तक हम इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती या फिर थोड़ा और बेहतर हालात नहीं होता। जी, ये तो है कि हमें वी नीड टू मेंटेन ऑल दीज प्रिकॉटिव मेजर्स। चलते चलते डॉक्टर आयशा, आपसे बस ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स फॉर एनजेप, कुछ अगर वो हाईलाइट करना चाहें आप। Sana, in terms of a future project, I did mention one already, which is we are trying to focus on the mental health, which would emerge as a big issue once we come off this restriction. So we are trying to have few things in particular for community as well as targeting our own doctors population. So that's something which is underway and we're working hard on those things. The other project, I guess, is in terms of pandemic, COVID pandemic in Pakistan. Dr. Sharoz already has mentioned a little bit about it, that we are trying to have some funds collection for the PPE for the doctors back in Pakistan, because obviously our heart goes out for all the doctors in this world, and they are the frontliner, and unfortunately they are suffering as well. And simple things like PPE, which it's really hard to believe that that simple thing yet is not available, readily available in some countries like Pakistan. So those are a few related to charity and educational activity. But then I guess it would also depend on the restriction pattern as well, how it comes off, because we do have some social events, we do have some other events which we were hoping that we would be able to do, which again is sort of question mark depending on the restriction, whether it would come off for 100 people or 200 people, or won't happen this year, would occur next year. It's hard to say. Yeah, but we just hope for the best, inshallah. Inshallah. जी, चलते चलते अगर आप में से कोई भी कोई मैसेज देना चाहे तो आप प्लीज़ कह सकते हैं, बीइंग डॉक्टर्स या बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनजेप। जी, मैं एक कहना चाहूँगा, देखिए हम वी आर 3 सिटिंग हियर बट वी हैव अ Yeah. होल टीम बिहाइंड अस। हमारे पास और भी डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ एग्जीक्यूटिव कमिटी में हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर इरफान, और हमारे एग्जीक्यूटिव कमिटी में डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर सरफराज, डॉक्टर जफर, डॉक्टर महमूद भट्टी, डॉक्टर मारिया और आई थिंक डॉक्टर अजीज। तो और डॉक्टर न्यू आई है हमारी डॉक्टर फला। तो हम सिर्फ हम 3 नहीं हैं, प्लीज ये सब भी हमारे साथ हैं, तो वी वुड नॉट बी एंड अप विदाउट दीज पीपल। जी जी बिल्कुल एग्री। I think जी I would like to give a message to community. I Yeah. think everyone is doing so well, being a community and following the restrictions and the guidelines. I think my only message, which is, I think I see it really problematic issue at the moment, that there are people who do have medical illnesses which requires immediate attention or medical attention, and they are just sitting behind, hiding at home because worried about the corona and not coming forward to see or go to see their general practitioner or come to see the specialist. So if Yeah. you do have any medical problem, not to wait. Please do present to your general practitioner or to emergency depending on. जी, थैंक यू सो मच। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और प्लस A1 टीवी के बिहाफ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, यू आर द फ्रंट लाइनर्स, especially you three are sitting in front of me and all those like you know who are working as a doctor or nurses, hats off to you guys. Of course आप लोगों की family है, of course आप लोगों की अपनी personal life है, but you put your life at risk and then you serve whole community. तो आप लोग सबको मैं सलूट पेश करना चाहती हूँ। अगर आप लोग फ्रंट लाइन पर जाकर हम लोगों के लिए काम ना करें तो आई थिंक हम लोग घरों में बैठकर इतना रिलैक्स ना हो। और ऑफ कोर्स आपने डॉक्टर आयशा बड़ी अच्छी बात कही थी
कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि उन हालात में भी काम कर रहे हैं कि जब उनके पास प्रॉपरली वो सारा इक्विपमेंट नहीं है जिससे वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन स्टिल दे आर सर्विंग द कम्युनिटी। तो ये जज्बा जैसे मैं समझती हूँ आर्मी के लोगों में है कि अपनी जान का नजराना देते हैं और वो फ्रॉम डे वन माइंडसेट होता है। तो अभी जो हमारे डॉक्टर्स और इवन नर्सेज वगैरह भी कर रहे हैं, तो आई थिंक ये भी मैंने अभी पिछले दिनों काफ़ी ये देख रहे थे कि यूके में, यूएसए में, इवन पाकिस्तान में भी यंग डॉक्टर्स हैं जिन्होंने दिन रात काम भी किया है और जिन्होंने अपनी जानें भी दी हैं। कोरोना वायरस ऑफ कोर्स कम्युनिटी को सर्व करते करते उन्हें कोरोना वायरस जैसी डिजीज़ हो गई एंड देन अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट सर्वाइव। तो अगेन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग एनजेप, तो एनजेप भी बड़ा काम कर रही है हमारी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं आप। और ये कि सिंस 2011 यू आर वर्किंग रियली हार्ड, एंड प्लस द थिंग विच आई ऑब्जर्व एज अ कम्युनिटी मेंबर इज कि यू आर ऑलवेज एवरीवेयर विद एवरीवन। तो आई थिंक ये सारा क्रेडिट आप सारे डॉक्टर्स को जाता है। तो होपफुली हम सारे इससे कुछ सबक लेंगे इंशाल्लाह। तो once Thank you again, so much, आप Sana, Thank you for so much for having us. Thank Thank you you. और आपको एडवांस ईद मुबारक और रमजान मुबारक हम सबकी तरफ से। जी थैंक and यू सो stay मच, safe. आपको भी बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। डॉक्टर आयशा आप कुछ कहने वाले थे? नहीं, बस मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही थी जो कि आई थिंक वी आर डूइंग इट एज अ ग्रुप फॉर इनवाइटिंग अस एंड गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू टॉक टू आवर कम्युनिटी। So thank you so much क्योंकि I think that is the collaboration which is important to bring the message out to whole community. So thank you for that. या थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी इसी तरह, मैं आपको टाइम टू टाइम डिस्टर्ब करती रहूँगी। इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम से हम विदा चाहते हैं। तो टिल देन प्लीज़ कीप वॉचिंग A1 TV। थैंक यू। Thank you. हम ऑफ स्क्रीन हो गए, चलिए जी।